अस्सलाम वालेकुम class. वालेकुम सलाम। Okay, beta. Now you take out your book and see page number 144. Page number 144. Yes, have you take out? Yes, class. Neutralization topic we have already discussed in chapter number 10. Okay, so we only briefly discuss this topic. Okay, first of all, who want to read? Yes, Farhan, you start reading. Yes, Samir, you start reading. Teacher, from another example. No, but page number 144, neutralization. Neutralization. Hmm. If we add an acid to a base drop by drop, an acidic character of the acid decreases gradually. A stage will come. A stage will come when the resultant solution will become natural to litmus. Neutral to This lit. stage is called neutralization. Hmm. In other words, when equivalent quantities of an acid and a base are mixed, salt and water are formed. A common example is the reaction between HCl and NaOH. NaOH. Yes. NaOH, you know name of the NaOH? Yes, anybody know about the name of this? What is Sodium NaOH? hydroxide. Yes, sodium hydroxide. And HCl? Hydrochloric acid. Ammonia chloride. Ammonia नहीं chloride. नहीं hydrochloric acid. Okay. So please you remember these all formulas. Okay. Now class, this neutralization topic we have already discussed in chapter number 10. Okay, only briefly I again tell you what is neutralization. uh, we have discussed the properties of acid and base. Okay, so when we mix this acid in the base, so acid is neutralized by the base. Okay, what is the meaning of neutralize? Means the characteristic of the acid is completely uh, completely skipped, and the neutral character is produced. This neutral character is basically the character of the salt. Okay, for example, he is giving the example when we add sodium hydroxide in hydrochloric acid, so it produces salt and water. We have discussed this example many times in the class. Okay, when we add the hydrochloric acid in sodium hydroxide, the sodium chloride and water is produced. So I have told you what is the neutralization reaction. In the neutralization reaction, the H plus ion of the acid and OH ion of the base, both are combined, it makes the water. So basically the neutralization reaction is this, the formation of water. ठीक है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन है, both are combined, इट मेक्स वाटर. दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड फ्रॉम दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द सॉल्ट इज आल्सो प्रोड्यूस. अब देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है इसमें. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड भी बनता है इस रिएक्शन में, जब जो है वो एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कंप्लीटली तौर पर बेस के जरिए से. ठीक है, सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये तो हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं. मैं इसको ऐसे आपको जस्ट आपको आइडिया देना चाह रही थी. और हम इसके बाद इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह दोबारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो करेंगे, तो फिर दोबारा से जो है न्यूट्रलाइजेशन का उसके अंदर जो है वो और डिस्कस कर लेंगे. देखिए, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था. एनीबॉडी नो? किसी को याद है क्या था? अच्छा फरहान, अच्छा ओके ओके फरहान, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है उसकी माइक्रोफोन की. ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, अच्छा जी क्लास,
नाउ यू टेल मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा. जी, अगर आप लोग साथ में बैठेंगे मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं. मुझे अगला टॉपिक पढ़ाना है. ये तो टॉपिक वाइज हम पढ़ चुके थे. ठीक है, बेसिकली हमें डिस्कस करना है एसिडिटी ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आर यू लिसनिंग? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस टीचर आ रही है. आ रही है. अच्छा, अब आप लोग आपको न्यूट्रलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा? आप बिना तक कल बता दीजिए नहीं समझ में आ रहा तो. नहीं टीचर नहीं समझ में आ रहा. नहीं समझ में आ रहा. चलो आप और से सुनिए बेटा. मैंने आप लोगों को बताया था एसिड. आप लोगों ने देखा है एसिड कैसा होता है? थोड़ा तेज सा होता है. आप लोगों ने घरों में भी एसिड देखा होगा, स्पेशली इन द टाइल वॉशिंग वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं टाइल की वॉशिंग वगैरह के लिए. ठीक है, एसिड कैसा होता है? बहुत उसका तेज इफेक्ट होता है. अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपको देखिएगा आपका हाथ जलने लगेगा, मतलब वो एरिया आपका रेड हो जाएगा, मतलब बहुत तेज होता है एसिड. ठीक है, बेसिस जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? नॉर्मली आपके जो है सोप वगैरह के अंदर यूज होते हैं. तो कैसे होता है? स्लिपरी टच होते हैं. मतलब ये कि बहुत हल्के होते हैं. ठीक है, जब हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उनके मिक्स करने से क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं. इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये कि जब हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों के मिक्स करने से जो चीज़ बनेगी उसको हम कहते हैं सॉल्ट और वाटर. बेसिकली जो है वो इस पूरा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है. इसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं. ना एसिड का अब जो न्यूट्रल चीज़ बन रही है इसमें ना आपको एसिड मिलेगा ना आपको इसमें बेस मिलेगी. दोनों चीजें नहीं होंगी. इसमें यहाँ पे आपको मिल रहा है सॉल्ट और वाटर, यानी कि दूसरी नई चीजें बन गई, नई प्रोडक्ट बन गई है. जिसने क्या किया, जिसमें ना आपको एसिड मिलेगा ना उसमें आपको बेस मिलेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एसिड भी नहीं था. एचसीएल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एचसीएल की एग्जांपल देखिए. यहाँ पे अब आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म हो गया. फिर आपने रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से. सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे जो है वो आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड बना है और वाटर बन गया. तो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा, ना एसिड है ना बेस है, बल्कि सॉल्ट और वाटर बन गया. ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होकर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म कर देते हैं अब तो, और एक नई चीज बना लेते हैं. इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, कुछ समझ में अब आ रहा है? कुछ समझ में अभी आया या अभी भी नहीं आया? इस ऑल ऑफ यू, जिसको नहीं समझ आया दोबारा बोल दीजिए जल्दी से. ये जो एरिया मुकर्रम, रेहान, ताहा, अहमद. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डू यू रिमेम्बर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? यस मिस. याद है? थोड़ा सा बताएंगे बेटा ताकि बाकी सब लोग जो नहीं समझ में आते जिन लोगों को भी समझ में आ जाए. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं. सही, गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ यस द अदर स्टूडेंट टेल मी, नाउ यू अंडरस्टैंड? आपको बात समझ में आ रही है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एसिड और बेस आपस में मिक्स होकर सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं. इसमें ना एसिड की प्रॉपर्टीज बची हैं ना बेस की प्रॉपर्टीज बची. ठीक है, दोनों के मिक्स होने से एक नई प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो गई हैं. इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब जो है वो दोनों की जो है वो प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, ना एसिड की प्रॉपर्टीज बची है ना बेस की. दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपको समझ में आ रहा है? यस, ऑल ऑफ यू. यस टीचर अब समझ में आ गया. अब आगे समझ में और किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर तो बता दीजिए ताकि हम, क्योंकि मैं इस टॉपिक को ज़्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ. हम असल बेसिक शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक बेसिसिटी ऑफ एसिड. ठीक है, नाउ यू टेल मी यहाँ तक. हाँ बोले बेटा. मिस वो सॉल्ट का क्या पीएच है? वो न्यूट्रल है क्या एसिड है क्या बेस है? वो सॉल्ट आपको मैंने क्लास में आई थी पढ़ा भी था. सॉल्ट को बताया था सॉल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं. अब यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है. ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है क्यों? क्योंकि ना आप देख रहे हैं कि सॉल्ट के अंदर ना एच है ना ओ एच है. अगर एच होता है इसके अंदर तो उसका मतलब होता है कि सॉल्ट एसिडिक है. अगर ओ एच होता है इसका मतलब है कि सॉल्ट बेसिक है. ठीक है, ना इसमें एच है ना ओ एच है, यहाँ पर सिंपल सोडियम क्लोराइड है, NaCl है. ठीक है, तो उसका मतलब है कि सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, उसकी पीएच क्या है, न्यूट्रल पीएच है. हम पीएच का टॉपिक पूरा भी पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो पीएच का टॉपिक क्योंकि असल में पीएच का टॉपिक इंपॉर्टेंट है चैप्टर का. तो ये पहले बेसिसिटी और एसिडिटी और पढ़ ले, उसके बाद फिर पीएच का पढ़ेंगे. ठीक. ओके मिस. ठीक है, ओके. ये क्लास आपको प्रॉब्लम अगर किसी को है तो मुझे बता दें ताकि हम ये नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड. ओके, पेज नंबर 145 पे. क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ लिया था. मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था ये. ओके. Okay, now Zohaib, welcome beta in our class. So you see page 145. Take out your book. See page 145. Okay. Now we start. Yes, Ahmad, you start reading. Beta page number 145. Mono and polyacid and bases.
Basicity of acid. As we have seen that an acid yields the proton. Different acid have different number of proton, acidic hydrogen per molecule Molecule. and yield different number of H3O H. ions in the CO. Hmm. The common acid like HCl, HNO3 and CH3COOH contain only the acidic hydrogen atom per molecule which dissolve in water. 1 mole of iron of each of these acid is capable of Hmm. producing 1 mole of hydrated H plus is equals to H3O. हाँ, HCO ion. HCO कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. Yes, what happened? अहमद को प्रॉब्लम हो गई. Okay, कौन now class. सी I was. Yes, class. Are you listening my voice? Yes, teacher. Okay. Now, beta. Now we discuss about the basicity of acid. Okay. You all of you share the screen. You see the basicity of acid. The basicity of an acid is the number of hydrogen ions which can produce by one molecule of acid. Example, acetic acid is monobasic acid. Okay, as it can lose one proton of hydrogen atom to form an positive ion. Okay, the next यहाँ से okay, now you see what is the basicity of acid. Now, class, what is the basicity of acid? Basicity of acid means is the maximum number of hydrogen ions. Okay, basicity of an acid is the maximum number of hydrogen. Okay, what is the meaning of the basicity of acid? Basicity of acid means when you dissolve acid in the water, if so it produce H plus ion. Okay, this H plus ion when combined with the H plus OH ion, so it produce water. ठीक है. बेसिकली आप यहाँ पर जो है पेज में 145 की लास्ट 2 लाइन देखिए जरा गौर से. The number of replaceable or ionizable hydrogen atom present in a molecule of an acid is called basicity of acid. किसी भी एसिड के अंदर जितने हाइड्रोजन के आयन मौजूद होते हैं या जितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद होते हैं वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाते हैं. गौर से दोबारा सुन लीजिए, इसकी डेफिनेशन गौर से सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाकी क्या चीज़ें. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन. The number of replaceable or ionizable hydrogen atom present in a molecule of an acid is called basicity of acid. किसी भी एसिड के अंदर जितने H plus आयन मौजूद होते हैं वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू सी ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, मोनोप्रोटिक एसिड. दिस इज द मोनोप्रोटिक एसिड. ओके, इसको मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है. Here is given the example hydrochloric acid, acid and nitric acid is the called the monoprotic acid or monobasic acid. Okay. अच्छा जी, अभी आप लोग थोड़ा सा बोल रहे होंगे कंफ्यूज ना हो. पहले एक बात सुन लीजिए. और आप यहाँ देख रहे हैं एसिड के फॉर्मूले यहाँ दिए हैं. ये क्या है? HNO3 किसका फॉर्मूला है? This what is the formula of, yes, tell the name of this HNO3. Anybody know? Nitric acid. Nitric acid. Good, very good. Okay, and you already know about the HCl. HCl for Hydrochloric acid. hydrochloric acid. Hydrochloric. Good, very good. Okay, HCl for hydrochloric acid and HNO3 for the nitric acid. So now you see, how many H atom or hydrogen atom present in both acid. दोनों acid के अंदर कितने hydrogen atom मौजूद? Yes, tell. दो होंगे. अच्छा, HCl में कितने ज़्यादा हैं आपको? HCl में टीचर एक है. एक है. और HNO3 में? एक है, उसमें भी एक है. एक है, ठीक है. So it means HNO3 and HCl both have one hydrogen atom. One hydrogen atom means their basicity of acid is called the monobasic acid or monoprotic acid. अगर किसी एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद है, ठीक है, उस एसिड को या उसकी जो है वो बेसिसिटी क्या क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड द मोनोबेसिक एसिड. अब मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ? ठीक है, आप गौर से सुन लीजिए. मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये कि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम है जो कि एक OH आयन के साथ मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना सकता है. ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जब करेगा ये तो एक OH आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है. जब किसी फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने अभी यहाँ पर
पेज 144 पे देखिए आपने एक पहली इक्वेशन जो क्या है HCl प्लस NaOH। तो HCl का जो हाइड्रोजन है वो NaOH की OH के साथ मिक्स होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो आपका HCl और HNO3 में एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड और मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, यहाँ मैं कर्सर रख रही हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए यहाँ नाम साथ लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ यू टेल मी, यस Taha, you tell me how many hydrogen atom present in this sulfuric acid? Yes Taha, Taha मेरे साथ जो है वो सिर्फ लिंक खोल कर जो है सो गए। Yes, yes anybody tell, ये जो सो रहे हैं ना इनके अक्सर Sir, जवाब two. दे रहे हैं। Sir, two. जी हाँ बिल्कुल सही बात है, 2। ओके, सो नाउ यू सी दिस इज दिस sulfuric acid having a 2 hydrogen, okay, so it means it's called diprotic acid और dibasic acid। इसका बेसिक भी कहते हैं, बेसिक क्यों कहते हैं, बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो OH आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम है ना, दो हाइड्रोजन एटम है तो दो OH आयन के साथ मिक्स होकर दो वाटर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। लिहाजा जो है वो H2SO4 क्या कहलाता है, डाइप्रोटिक एसिड या डाइ, मेरे पास इसमें नहीं है, आप अपनी बुक में देखिए। थर्ड एग्जांपल यू सी पेज नंबर 146, इस 146 देखिए पेज। जोहेब आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये जोहेब आपको कुछ समझ में आ रहा है या आप भी सबके साथ सो रहे हैं? No. अच्छा नहीं, क्या समझ नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा, जोहेब बताएं मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये डायप्रोटिक डाइप्रोटिक वाली समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ये देखिए बेटा कि अभी मैं टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। यहाँ Yes. टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एसिड। हाँ, Yes. इसका मतलब क्या है कि एसिड को जो है एसिड की बेसिसिटी देख रही है। आपको मालूम है एसिड में तो एसिडिटी होती है, बेसिसिटी थोड़ी होती है एसिड के अंदर, एसिड में एसिडिटी होती है। बेसिस ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एसिड के अंदर जो चीज मौजूद है इसको हाइड्रोजन एटम कहते हैं, वो कितने मौजूद है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। बेसिसिटी क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ये बेस को न्यूट्रलाइज कर सकती है, ठीक है। बेस को न्यूट्रलाइज कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं और बेस के अंदर OH आयन होते हैं, ठीक है। जब वो दोनों मिलते हैं तो वो वाटर बना लेते हैं, इसको हम जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जिसकी वजह से वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए हम एसिड की बेसिसिटी कहते हैं और बेस की एसिडिटी कहते हैं। हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस और हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब हम बात करें बेसिसिटी ऑफ एसिड की, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है कि किसी भी एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। किसी भी एसिड में कितने हाइड्रोजन के एटम है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पहली एग्जाम्पल देखी कि ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है HNO3, इन दोनों में कितने कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं? यस जोहेब टेल मी, कितने हाइड्रोजन के एटम है इसके अंदर? 2. HCl में 2 है। अच्छा गौर से देखिए कितने, दोबारा देखिए। नहीं बेटा देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है H है, ठीक है। H के आगे कुछ लिखा हुआ है, 2 3 कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना, सिर्फ H खाली लिखा हुआ है ना। H खाली लिखा है इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई मतलब एक्स्ट्रा एटम से एक एटम है। जब कोई एक एटम होता है तो उसके आगे कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ एक एटम मौजूद है, ठीक है। HNO3 है, HNO3 के अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। अगर किसी एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद है तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक OH आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। ये एक OH आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पूछ ले, कर रहा हूँ। और आज नए नए बच्चे कौन आए हैं? तहरीम, सुनो प्लीज। और जिसको समझ में नहीं आ रहा बेटा पूछ लीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है, हम बेसिसिटी ऑफ एसिड डिस्कस करें। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है हमारी? बेसिसिटी ऑफ एसिड ये है कि किसी भी एसिड में कितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि HCl और HNO3 जो है इनमें जो है वो एक एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड। मोनो मींस क्या होता है? 1, ठीक है। एक ऐसा एसिड जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद है बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम जो है वो मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की। इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है सल्फ्यूरिक एसिड में रेहान? यस रेहान, इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है सल्फ्यूरिक एसिड में? ये जोहेब अभी कुछ समझ में आया है, अभी भी नहीं आया?
आ गया मैं। आ गया? अच्छा जी। ताहा, आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ आ रही है मैं। आ रही है, अच्छा। ताहा कुछ प्रॉब्लम हो रही है आवाज के। ओके, ताहा मैं कोशिश कर रही थी बोलने की, बेटा आप कोशिश करें सुनने की, और आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? टीचर अब हाँ म्यूट करके सेकंड बैठे चीज हमने एग्जांपल दी, बोले बेटा, तो क्या बोला? हाँ म्यूट करके बैठे मैं। चैट पे भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं आवाज कर करके आ रही चैट है। की आ रही है, चैट चले सही है। हाँ, वो चैट पे बात कर रहे हैं। ओके ठीक है। हाँ, वो बेटा इंटरनेट की प्रॉब्लम हर जगह रहती है ना, तो कुछ ना कुछ बचते रहते हैं। कोशिश करें आप लोग ना सुनने की, ठीक है? अच्छा जी। Now, बेटा second example समझ में आ गया H2SO4 की। H2SO4 is the sulfuric acid, and in this sulfuric acid two hydrogen atom is present. Okay, because of this sulfuric acid is called the diprotic acid. Okay, or also called dibasic acid. It means the sulfuric acid neutralize two OH ion. ये जो है वो दो OH ion को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए इसको हम डाइप्रोटिक एसिड की डाइबेसिक एसिड कहते हैं। इसी एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास इसमें मौजूद नहीं है, आप अपनी बुक में देखिए। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड की, ठीक है? फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4। पेज 146 पे थर्ड एग्जांपल है H3PO4। ओके, H3PO4 is the phosphoric acid. Okay, this phosphoric acid having the formula H3PO4. Now you tell me how many hydrogen atom present in this phosphoric acid. Phosphoric acid में कितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं? Yes, anybody tell? Yes, Three. H3, बिल्कुल सही। ओके यस, ठीक, मुकद्दस, वेरी गुड। This is the H3PO4 phosphoric acid formula. It means it has the 3 atom of hydrogen. Okay, because of this is called the tribasic acid. Okay, this is called tribasic acid, a triprotic acid. Okay, so if any acid having the more than 3 hydrogen atom, okay, this is called the polybasic acid. ठीक है? अगर ऐसा कोई एसिड जिसके अंदर 3 से ज्यादा हाइड्रोजन के एटम मौजूद हो, तो ऐसे हो तो हम कहते हैं मोनोबेसिक, ठीक है? 2 हो तो हम कहते हैं डाइबेसिक, अगर 3 हो तो हम कहते हैं ट्राइबेसिक, ठीक है? और 3 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये है एसिड की बेसिसिटी, ठीक है? यानी कि एक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन के आयन या एटम मौजूद हैं। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड। अब अभी सब समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दें। यस फरहान, आप अगर आपका माइक नहीं चल रहा तो आप चैट करके बता दें आपको समझ में आ गया। यस, एवरीबॉडी टेल मी अंडरस्टैंड। रेहान, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, जवेरिया खामोश बैठी है बिल्कुल। यस, टेल मी यू अंडरस्टैंड। यस टीचर। ओके, नाउ टीचर बुक क्लास। में जो हाँ डाइप्रोटिक एसिड है उसकी दूसरी एग्जांपल जो है उसमें HSO4 लिखा हुआ है, हाँ, वो तो वो भी दूसरी एग्जांपल। डाइप्रोटिक एसिड हाँ होगी? नहीं, वो डाइप्रोटिक बेटा, वो H2SO4 है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से H2SO4 किस तरीके से 2 स्टेप में जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। पहले स्टेप में उसकी एक हाइड्रोजन जो है वो चली गई, उसने OH आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है? दूसरे स्टेप में दूसरी H प्लस चले जाएगी, अब ठीक है? अब देखिए दूसरे स्टेप की जो एंड प्रोडक्ट है उसमें क्या रह गया? सिर्फ SO4 रह गया। पहले जब फर्स्ट रिएक्शन शुरू हुआ था तो H2SO4 से शुरू हुआ था, लेकिन उसके एंड प्रोडक्ट में क्या था? HSO4, ठीक है? बाइसल्फेट आयन कहलाते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है? और सेकंड स्टेप के एंड में देखिए सिर्फ SO4 रह गए, ठीक है? उसका एच, इसका दूसरा एच भी चला गया, ठीक है? और दोनों दफा वो वाटर के जो है OH के साथ मिलकर उसने H3O कहते हैं प्रोटियम, ठीक है ना? ये जो है वो प्रोटीन से जो है 2 दफा OH आयन को न्यूट्रलाइज किया, इसलिए हम इसको डाइबेसिक एसिड कहते हैं, यानी कि दो OH आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है? इसलिए जो पहली एग्जांपल जो दी हुई है H2SO4 की, वो H2SO4 2 स्टेप में इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इसमें 2 जो है वो H या हाइड्रोजन आयन मौजूद थे। तीसरी एग्जांपल देखिए H3PO4 की एग्जांपल जो दी हुई है इन्होंने, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 दफा में जो है वो तीन स्टेप में जो है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है? 3 स्टेप के अंदर यहाँ पे जो है वो न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। और यहाँ पे जो है ना थर्ड जो दिया हुआ है इसकी आप देखिए H3PO4 है, ठीक है? रिएक्टेंट के अंदर गौर से देखिए, सही है? दूसरी वाली में H2PO4 है और तीसरे फिर H2PO4 दिया, गलत दिखाया इन्होंने, क्योंकि सेकंड वाले इक्वेशन के लास्ट में देखिए HPO4 बन चुका है, तो इन्होंने H2PO4 गलत दिखाई, HPO4 है, ठीक है? समझ में आ रही बात? H3PO4 इज द ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है? ट्राइबेसिक एसिड है तो ये इसके पास 3 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, तो ये 3 स्टेप में अपने एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज करता जाएगा, यानी कि OH आयन को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, क्योंकि ये ट्राइबेसिक एसिड है, यानी कि ये OH 3 दफा जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है? जबकि H2SO4 डाइबेसिक था तो उसने 2 स्टेप में किया,
और SCH जो है वो मोनो बेसिक एसिड था, तो उसने एक ही स्टेप के अंदर जो है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस किया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी अभी कुछ समझ में आया? हलीमा, तहरीम, मुकद्दस? यस क्लास? Yes, teacher. कोई Yes, प्रॉब्लम तो teacher. नहीं, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, teacher. ओके बेटा, अभी कुछ बच्चों की बिल्कुल आवाज अब तक नहीं आई, पहुंची, कोई आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम जो है वो बात करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ बेस है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, ये तो था एसिड की बेसिसिटी, यानी कि एसिड में कितने H हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन मौजूद है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एसिडिटी ऑफ बेस। अब हम बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेस की हम बात कर रहे हैं। अब बेस में क्या होता है, चलिए इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यस, हु रीड, हु वांट टू रीड? यस, कुछ बच्चे बिल्कुल खामोश बैठे हैं। यस जोहेब, नाउ यू रीड बेटा, आज आप रीड कर लें। पेज नंबर 146, लास्ट टॉपिक, मोनो एसिड एंड पॉली एसिड बेस, एसिडिटी ऑफ बेसिस। एक मिनट टीचर। ओके, 146। Similarly, base that produce 1 mole of OH, ion, हाँ, OH ions per mole of base such as NaOH and एंड KOH हाँ, are यानी कि called सोडियम mono हाइड्रोक्साइड है, acid. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Yes, yes. Bases that produce 2 moles of OH ions per 1 mole of base such as CaOH and BaOH2 are called diacid bases, and bases that produce 3 moles of OH ions per 1 mole of base such as AlOH and CrOH are called triacids bases. Uh, the number of आयोनाइजेबल, ionizable or रिप्लेसिएबल, सीएबल, replaceable minus OH ions present in a molecule of base is called acidity of the base. Bases that contains 2, 2, 3 3 or 1 or more hydroxide OH ions per molecule are called polyacid bases. bases. Okay. Now yes, who is asking any कुछ क्वेश्चन कर रहा था कोई? ना बेटा आप जल्दी से ऐसे डेफिनेशन सुन No. लीजिए, हमारे पास 2 मिनट्स रह गए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिटी ऑफ बेस जस्ट अपोजिट टू द बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की बेसिसिटी क्या थी कि उसमें कितने H प्लस आयन मौजूद है, और बेस की एसिडिटी क्या है, उसमें कितने OH आयन। OH आयन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइल आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, सो बेसिसिटी एसिडिटी ऑफ बेस क्या है कि किसी भी बेस के अंदर कितने OH आयन मौजूद है। फॉर एग्जांपल यू सी ऑन स्क्रीन कि NaOH में बताइए कि कितने OH आयन है। OH आयन इज 1 आयन। ओके, तो बताइए इसमें कितने OH आयन है? यस, एनीबॉडी टेल, जल्दी से बताइए, NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH आयन है? Teacher 1. 1, गुड, 1। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड। यस, अदर स्टूडेंट अंडरस्टैंड। देखिए बेटा यहाँ पे NaOH, Na के इसमें कितने हाइड्रोक्साइड है? सिर्फ 1 OH। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनो एसिड। ठीक है, ये जो है मोनो एसिड बेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही OH साइड CaOH2, CaOH2 के अंदर जो है वो कितने हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हैं? यस, जोहेब टेल मी हाउ मेनी OH ion present in this calcium hydroxide। आपके सामने एग्जांपल है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ स्क्रीन, जो शेयर द स्क्रीन, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? Yes, teacher, हो रही हो रही है, तो है. आपको नजर आ रहा है ये CaOH2 नजर आ रहा है? कर्सर मैंने यहाँ रखा हुआ, कर्सर इस पे, हमारी क्लास खत्म हो रही है बेटा। Yes, yes. हाँ, कितने OH आयन है इसके अंदर, जल्दी से बताइए। 2. 2, यस, इसमें 2 आयन है, तो Yes. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे Di- डाई एसिड बेस। diacids. डाई एसिड बेस इसमें, क्योंकि ठीक है NaOH में एक OH था, उसको हमने कहा था मोनो एसिड बेस, इसके अंदर 2 OH है, इसको हम कह रहे हैं डाई एसिड बेस। ठीक है, इसे एक ने आप तीसरी एग्जांपल उन्होंने दी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की AlCHOH3 और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH3, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राई एसिड बेस, वो ट्राई एसिड बेस कहलाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ क्लास बेटा टाइम इज ओवर, इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस। ओके, अस्सलाम वालेकुम, our class time is over। Okay, thank you।